Hi guys, welcome to the YouTube channel The Practical Mariner. Today we will gonna discuss about DG's latest advertisement of Master Mariners for a job role inside DG Com Center Mumbai. So the advertisement has released on 17th of July 2025. This is also available in DG's official website. You can search through via this form number and you will get it. If you don't get it, then check my description box. I'll be mentioning it there. Let's get into the video directly. First, they are telling that Directorate General of Shipping DGS Mumbai invites application from eligible and qualified candidates for engagement of Master Mariner as in charge of emergency response team. This will be your core operating team where the DG wants a Master Mariner to be hired on contract basis through Indian Register of Shipping. IRIS will be holding the interview procedure and the onboarding procedure inside the DGCOM center. Let's get into the job profile quickly. First, they are telling that the designation is in charge of emergency response team, DG Communication Center. The posting will be at DGCOM and LRIT Center, Navbhavan Ramji Kamani Marg, Balad Estate, Mumbai. This is the address of the office where a master mariner will be working for DGCOM on contractual basis. LRIT, it stands for Long Range Identification and Tracking. So let's get into the responsibilities. Supervision of the operational running of DGCOM center. Supervise करना है operation को, कोई भी casualty, कोई भी incidents reports हो उसके लिए. Analysis and preparation of summaries of marine casualty data, including past incidents. It means आपको analyze करना है and prepare करना है एक summary on basis of marine casualty data which is already available inside the DGCOM center, including some past incidents. It means some past incidents also you have to report to DGCOM through a proper analysis. Supervision of radio officers and operators deployed at LRIT and DGCOM Center. You will be the supervisor of the radio officers and some operators who are deployed at LRIT and DGCOM Center, Mumbai. They will be reporting to you. Preparation of analytical reports on marine casualties reported by companies. If any company is reporting any marine casualty, then you have to prepare an analytical report on it and you have to present it in front of DG. Coordination with various agencies for casualties, cyclones, and incident reports as per SOPs. You have to coordinate with some other third-party agencies who will provide you the casualty data, who will report to the DGCOM, and you have to prepare, as they have mentioned earlier, an analytical report on that casualties, uh, any natural calamity or any incident report as per SOP standard operating procedure. Dissemination of reports after approval from NS casualty branch. NS is a shipping casualty branch involving a vessel registered in India or one that occur within Indian waters. It means अगर कोई vessel IRS से रजिस्टर्ड है यानी कि इंडियन फ्लैग्ड वेसल है या फिर कोई भी वेसल इंडियन वाटर में या फिर इंडियन मेरीटाइम जुरिस्डिक्शन में कोई कैजुअलिटी हुआ है तो वो सारे कैजुअलिटीज रिपोर्ट होते हैं एनएस कैजुअलिटी ब्रांच को. वो ब्रांच से आपको रिपोर्ट्स कलेक्ट करना है, वो ब्रांच से आपको रिपोर्ट्स लेना है, आपको खुद का एनालिसिस डालना है एंड यू हैव टू प्रेजेंट आर डिटेल्ड एनालिटिकल रिपोर्ट टू द डीजी. Reporting to nautical surveyors, casualty branch on all operational matters of NDC, LRIT and DGCOM center. अगर हम लोग NDC, LRIT जैसे मैंने पहले बताया है, it's a long range identification and tracking center. DGCOM सबको पता है, इट्स अ DGCOM सेंटर, DG कम्युनिकेशन सेंटर एंड NDC के बारे में मैंने यहाँ पे छोटा सा एक नोट्स प्रिपेयर किया है. ये नोट्स आपको DG के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. डिटेल में LRIT क्या है, NDC क्या है, NS क्या है, उनका कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो लोग क्या काम करते हैं, इसका पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट यू विल गेट इट
on DG official website. अगर आपको नहीं मिलता है, I'll try to put that link on my description box. You can click on the link and you will directly get into that page. What is NDC? National Data Center for LRIT. The Indian National Data Center for LRIT was set up and made operational at Directorate General of Shipping, Mumbai in July 2029. It is repository of the LRIT information. ये छोटा सा जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने राइट अप किया है, ये डीजी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने लिया है एंड उधर आपको मिल जाएगा जैसे मैंने बताया है. चलिए अभी नेक्स्ट जाते हैं. इट्स फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में COC होना जरूरी है. मास्टर FG इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब आप इंडिया से ले सकते हो, आप इंडिया के म्यूचुअली एग्रीड जो कंट्रीज है उनसे भी मास्टर मेरिनर का COC ले सकते हो. कौन कौन से कंट्रीज म्यूचुअली एग्रीड है इंडिया से, ये मैंने मेरे पिछले वीडियो पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हो. Experience, at least 1 year of sailing experience as master. This is at least minimum criteria. And age preferences for candidates below 50 years. However, age limit may be relaxed for candidates with exceptional experience and domain expertise. अगर आपके पास इसी डोमेन में काम किया हुआ पहले का कोई एक्सपर्टीज है या फिर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, so then in that matter your age can be considered. If you are above 50 also, then also your age can be considered if you have expertise on that respective domain. IT skills में आपको क्या क्या चाहिए? Microsoft Excel चाहिए, Word चाहिए, PowerPoint चाहिए एंड डेटा एनालिसिस टूल्स पे प्रोफिशिएंसी चाहिए. नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग जाएंगे, इधर सैलरी डिस्कस किया हुआ है. कॉन्सोलिडेटेड सैलरी विल बी 22,50,000. ऑल इंक्लूसिव payment will be done through IRS. This is a LPA. This is a LPA. It means it will be a CTC. It will not be your monthly salary. आपका monthly salary इधर कैलकुलेट किया हुआ है 1,87,500 रुपीज पर मंथ. इसमें ऑल इंक्लूसिव है. आपका टैक्स या आपका प्रोफेशनल टैक्स कुछ भी आएगा वो इसमें इंक्लूडेड होगा. जब आप इंटरव्यू के प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे, डीजी कॉम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका टोटल सैलरी ब्रेकअप क्या है. इसके बाद चलते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे. दैट इज मास्टर FG COC इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आपके पास मास्टर मेरिनर लाइसेंस होना चाहिए इंडिया से इशूड या फिर इंडिया के म्यूचुअली एग्रीड कंट्री से जो है वहां से इशूड होना चाहिए. आपके पास अगर हॉन्डुरस या पनामा COC है, DG shipping will not encourage those COCs. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा विच कैन बी रिन्यूड फर्दर एनुअली. साल दर साल वो रिन्यू होता जाएगा आपके एक्सपीरियंस, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे. इधर लिखा भी है सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, एप्लीकेबल गवर्नमेंट गाइडलाइंस. इधर एक बहुत अच्छा नोट दिया गया है दिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इधर ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कैन बी शॉर्टन टू अलाउ सेलिंग ऑन बोर्ड शिप्स. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बीच में सेलिंग पे जाना है, सपोज आपने 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड आपको 8 महीना या 9 मंथ के बाद आपको कोई सेलिंग पे जाना है, तो दैट टाइम दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी शॉर्टेंड, बट देयर विल बी टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको इंटरव्यू या रिक्रूटमेंट के टाइम पे डीजी से पूछ लेना पड़ेगा या फिर वो लोग आपको बता देंगे. हाउ टू अप्लाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों ने जान लिया है कि क्या कोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, कौन से एरिया पे वो लोग ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है, क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है, सब कुछ जान लिया है. नाउ वी विल गेट इनटू हाउ टू अप्लाई. अप्लाई के लिए आपको ये तीनों ही मेल आईडी पे आपका बायोडेटा भेजना पड़ेगा. अगर आप टेक्निकली उतना साउंडेड नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बायोडेटा ऑनलाइन पे नहीं भेजूंगी, आप जाके फिजिकली भी सबमिट कर सकते हो वो बायोडेटा फिजिकली, या फिर आप पोस्ट के थ्रू
भेज सकते हो डीजी को, उसके लिए यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है, दैट इज कैप्टन हरिंदर सिंह, नॉटिकल सर्वेयर एंड डीडीजी टेक, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। ये वही सेम, ये मुंबई में आपको जाके देना पड़ेगा। बेटा बिल्डिंग 9th फ्लोर, आई थिंक टेक्नो कैंपस, कंजूर विलेज रोड, कंजूमार्ग ईस्ट। इधर आपको आपका सीवी बाय पोस्ट आप भेज सकते हो, आप खुद जाके सबमिट कर सकते हो, या तो फिर आप ये तीनों जो ईमेल आईडीज दिए गए हैं, ये तीनों ईमेल आईडीज पे आपको ये आपका सीवी विथ द प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन आपको भेजना है। अभी आपके बायोडेटा पे क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि इधर लिखा गया है कि आईटी स्किल्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, डेटा एनालिसिस, अगर किसी भी फील्ड में आपका कुछ एक्सपर्टीज है, आपको कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया गया है, सपोज आपने कुछ ट्रेनिंग किया है एंड आप वो सर्टिफिकेट अगर उधर मेंशन कर सकते हो, सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो सीवी में मेंशन करो, दैट विल गिव अ बूस्ट टू योर सीवी। एंड ज्यादातर सीफेयरर्स के सीवी में फोटोज नहीं होते, बट आई विल सजेस्ट अगर आप एक सीवी किसी को भेज रहे हो तो वहां पे एक फॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर दो सीवी में। एंड सीवी में सबसे पहले आपका कुछ पर्सनल डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके बाद आपके सर्टिफिकेशंस के डिस्क्रिप्शन, एंड उसके बाद आपका सेलिंग एक्सपीरियंसेस आएगा। ऐसा नहीं कि आपने डेक कैडेटशिप से शुरू किया है, आपको मास्टर मेरिनर से शुरू करना है, मतलब आपका लेटेस्ट सबसे ऊपर होगा एंड धीरे 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 आप जैसे नीचे जाओगे आपका डेक कैडेट तक का एक्सपीरियंस उधर मेंशन होना चाहिए। ये एप्लीकेशन का लास्ट डेट दिया गया है फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 31 जुलाई 2025। इसका मतलब यही जुलाई के एंड तक आप ये सीवी के एप्लीकेशन डाल सकते हो, उसके बाद डीजी कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सीवी, कोई भी बायोडेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।